डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट means motion, flow. Electric comes for charge. Electric current means flow of charge. तो सिंपल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब पिछले क्लासेस में भी हमने देखा था, मान लीजिए वी हैव ए कंडक्टिंग वायर. हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है. सपोज कीजिए इसके एक क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से इन टाइम t क्यू चार्ज का फ्लो होता है. तो क्या कहेंगे? इन टाइम t चार्ज q flows, therefore for unit time charge flown is equal to q by t. That is called electric current I. It means electric current को हम कैसे डिफाइन करेंगे? The rate of flow of charge. The rate of flow of charge through any cross section. Section means टुकड़ा, cross section. The rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called electric current. तो क्या समझे? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज. सपोज through a cross section in time t charge flowing through this is equal to q. तो in time t charge flows through amount q. तो in time 1 charge flowing q by t which is called electric current. तो कैसे डिफाइन करेंगे? The rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called electric current. Continuous flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. Electric current को I से डिनोट करेंगे. It is denoted by I. It means electric current equal to charge flown by time taken. I equal to q by t. I equal to q by t. यहां से आप देखिए q इक्वल टू आई टी. हमने एक बहुत अच्छा टर्म बताया, q इक्वल टू आई टी. हमारी याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज q means it is equal to q. It means q equal to I into t. यानी करंट इंटू टाइम को हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे. तो अभी तक आप क्या याद रखें? इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. हाउ इज इट मेजर? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section of a conductor is called electric current. It is denoted by I
इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम I equal to Q by T. It means Q equal to IT. It is Q, current into time equal to charge. अब आए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंस I equal to Q by T, therefore unit of I equal to unit of Q by unit of T. unit of I equal to unit of Q by unit of T. अगर इसमें SI वर्ड जोड़ दे तो SI unit of I equal to SI unit of Q by SI unit of T. तो Q का SI यूनिट क्या हो गया? कूलम. टाइम का क्या हो गया? सेकेंड. तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड, which is called 1 ampere. It means 1 ampere equal to 1 coulomb by 1 second. तो 1 ampere कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 coulomb charge flowing through a conductor in 1 second, through a cross section of a conductor in 1 second, then current is called 1 ampere. That means 1 ampere equal to 1 coulomb by 1 second. अब इसी बात को मैंने आपके लिए जो PDF तैयार किया था उसमें मैंने लिखा, आप इसी से फेयर करेंगे. उस पर मैं एक बार बता दूं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू any cross section of a wire is called electric current. What is electric current? Rate of flow of electric charge through any cross section of a wire is called electric current. Electric current equal to total charge by time. I equal to Q by T. I means electric current, Q total charge flown, T time taken. तो I equal to Q by T. और एक चीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू कितना? NE. टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दैट्स वाई I इक्वल टू Q बाई T, I इक्वल टू Q बाई T को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस Q इक्वल टू NE, I इक्वल टू NE बाई T. अब आइए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंस I इक्वल टू Q बाई T, यूनिट ऑफ I यूनिट ऑफ Q बाई यूनिट ऑफ T. तो SI यूनिट ऑफ I इक्वल टू SI यूनिट ऑफ Q बाई SI यूनिट ऑफ T. तो Q का यूनिट कूलम और टाइम का सेकेंड. इट मीन्स SI यूनिट, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इट मीन्स SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड विच इज कॉल्ड एम्पियर. 1 एम्पियर द करंट थ्रू ए वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड. क्या कहेंगे? देखिए ध्यान से कि यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 एम्पियर द करेंट थ्रू ए वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड. हम समझ रहे हैं? यहाँ तक कंप्लीट याद हो गया. 1 मिनट ये याद रखेंगे एक बार फिर से. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज. हाउ इज इट मेजर्ड? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे? I इक्वल टू Q बाई T. Q का यूनिट कूलम, टाइम का सेकेंड. तो इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकेंड तो एम्पियर कहते हैं. अब है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, शायद हमारे पास समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख बेटा, ऐसा है, सपोज करो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल V वोल्ट का सेल जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आगे पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करेंगे। ये जो बड़ा वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करता है और छोटा नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का डायरेक्शन आउटर टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, from positive terminal of battery to कहाँ, निगेटिव टर्मिनल। बहुत ध्यान से देखना। मान लो ये एक कंडक्टर है, इसको हमने एक V वोल्ट के बैटरी से ऐड किया। बैटरी के टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, प्लस और माइनस। ये जो लंबी लकीर है इसको प्लस कहते हैं और माइनस। तो करंट का जो डायरेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की ओर, निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो अब देखो बेटा, यही आपको समझना है, तो समझना है यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से किधर की ओर, नेगेटिव की ओर। अब मान लो पॉजिटिव इधर की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन बैटरी में के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होगा, जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल विच इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली देखिए, हमने 3-4 बुक से कलेक्ट करके एक एक बात आपको समझाने के लिए इस पर मैंने बहुत ही फोकस किया है, और उसका समरी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली है क्या कि जब करंट का आविष्कार हुआ, डिस्कवर्ड हुआ सॉरी, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो वह कि भाई जिधर से फ्लो हो रहा है समझो वो हाई है, हाई पोटेंशियल पर है, और जिधर की ओर हो रहा है वो लो पोटेंशियल है। तो जिधर से फ्लो हो रहा है समझो वो प्लस। तो इसलिए कहा गया कि डायरेक्शन, तो ये जो है सो कन्वेंशनल करंट माना गया। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लिया गया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है वही हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। मैंने इसको बहुत अच्छा से कई बुक से कलेक्शन करके लिखा है, आपको मैं पढ़ के और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं, और अगर नहीं समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करेंगे, इस पर चर्चा बेसिकली जरूर होगी। देखिए, ये आपके फ्रॉम एनसीईआरटी बुक यहाँ हमने लिया है, देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 12th चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी में बुक में है। यहाँ से हमने लिखा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। Actually, in circuits using metallic wire, सर्किट जो बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रीवियस आगे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो द सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट माने इलेक्ट्रॉन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब देखिए, हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि फ्लो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, रेस्ट रहते हैं। फ्लो जनाब किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का।
तो मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली अगर हम मानते हैं करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, तो फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव चार्ज तो बैठा रहता है सेंटर में। तो वही इसमें एनसीईआरटी बुक को मैं एक बार पढ़ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। हाउएवर, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन, इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी। कब? एट दैट टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई उस समय इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्कवर की बात नहीं थी। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेकन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ